یہ والا سوال بہت ہی زیادہ لائکڈ ہے، 2000 سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے. ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اف یس دین از اٹ فارملیس اور ناٹ؟ ڈو یو بلیو ان اینی ریلیجن؟ اس کا جواب بھی بڑا سیدھا ہے، نہیں. میری رائے میں جتنا بھی کچھ میں نے سیکھا ہے دنیا کے بارے میں، ہماری پلانٹ کی ہسٹری کے بارے میں، ایولیوشن کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے، میری رائے میں کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں مانتا ہوں کہ یہ سوال کافی ڈیبیٹیبل ہے، اس پر بہت لمبی چرچا کری جا سکتی ہے، اور جو لوگ دوسرا اوپینین ہے جن لوگوں کا، ان کے اوپینین کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں تو میں اس بات کا ریسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو بڑی آسانی سے آنسر کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں دنیا کے سبھی دھرموں کا آدر بھی کرتا ہوں اور ان کی امپورٹنس بھی سمجھتا ہوں. آپ پوچھو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں بھگوان میں نہیں مانتا تو ریلیجنز کی رسپیکٹ کیوں کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ دنیا بھر میں بلینس آف لوگ ریلیجن کو ایک گائیڈنگ لائٹ کی طرح دیکھتے ہیں. ریلیجن کی مدد سے کروڑوں لوگوں کو امید ملتی ہے، اپنی لائف میں ایک پرپس ملتا ہے، اپنی زندگی میں کٹھنائیوں سے لڑنے کا ایک ذریعہ ملتا ہے. اور ایک کلچرل پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو ریلیجنز لوگوں کو ساتھ میں جوڑ کر رکھنے کا کام کرتے ہیں. ڈھیر سارے کسٹمز اور ٹریڈیشنز ریلیجن سے نکل کر آتے ہیں، جن کی اپنی ایک اہم جگہ ہے ہماری اس دنیا میں. بھائی صاحب کا پہلا سوال تھا، انہوں نے کہا کہ میں ایک ناستک ہوں، I'm an atheist، اور میں خدا میں نہیں مانتا ہوں، لیکن میں سائنس میں مانتا ہوں، اور میں نے سائنس میں کدھر بھی نہیں پڑھا کہ خدا ہے. یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال کہ اس کے کئی دوست ہیں جو ریلیجن میں مانتے ہیں، مذہب میں مانتے ہیں، کئی بار ڈسکشن ہوتا ہے. تو میرے دوستوں نے کہا کہ آپ ذاکر سے سوال پوچھیے، ہو سکتا ہے ضروری نہیں، ہو سکتا ہے وہ جواب دے اور آپ ان کے جواب سے مطمئن ہو. تو پہلا سوال انہوں نے پوچھا کہ سائنس کے اندر مٹیریل ایویڈنس از اے مسٹ. مٹیریل ایویڈنس از اے مسٹ مطلب کوئی مٹیریل ایویڈنس، کوئی چیز اگر کہتے ہیں بک ہے تو کتاب مٹیریل ایویڈنس ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ غلط ہے. میں دوسرا سوال پہلے جواب دوں گا، پھر پہلے پہ آؤں گا. مٹیریل ایویڈنس از اے مسٹ، یہ سائنس کہتی ہے. میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے یہ کہا کہ سائنس نے ثابت نہیں کیا، یہ آپ نے کہا، اس بات کو مانتا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ سائنس کے اندر مٹیریل ایویڈنس از اے مسٹ، اٹ از ناٹ ٹرو. اٹ از ناٹ ٹرو. اکثر ایویڈنس از مسٹ، لیکن اگر ایسا پروف ہے جو لاجیکل ہے، منطق آپ کے دماغ لاجک کے حساب سے، تو مٹیریل ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ اسکول میں نے پڑھا تھا کہ 3 اسٹیٹ آف میٹر ہے، سالڈ، لیکوڈ، گیس، برابر. ابھی ہم جانتے ہیں کہ 4th اسٹیٹ آ گیا، کالس پلازما، انٹرسٹیلر میٹر. ہم کہتے تھے ویکیوم. ویکیوم مٹیریل نہیں، بڑا ویکیوم میں مانتے. تو یہ ضروری نہیں، مٹیریل ہونا ضروری ہے، اکثر ہونا چاہیے، بٹ فرض نہیں ہے. لیکن منطق سے، لاجک سے اگر پروف کر سکے ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کو امریکہ جانا ضروری نہیں ماننے کے لیے امریکہ وجود میں ہے. امریکہ مٹیریل ہے، ٹھیک ہے، زمین ہے. آپ کو امریکہ جانا ضروری نہیں ہے، امریکہ کا فوٹو دیکھنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی لاجیکلی پروف کر چکا ہے، آپ اس کے لاجیکل آرگیومنٹس میں مانتے ہیں، تو آپ سنتشٹ ہوئیں گے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ امریکہ ہے. اسی طریقے سے ویکیوم، اسی طریقے سے کتنے چیزیں ہیں جو سائنس نے پروف کیا ہے وداؤٹ مٹیریل ایویڈنس. کئی چیز جو اسپیس اور اسٹرانومی میں ہے وہ اپنے لاجک سے پروف کرتے ہیں، جیسے so many billion of years, there is no proof, material proof. وہ لاجک سے پروف کرتے کہ اسٹار اتنا دور ہے، لائٹ ٹریولز ایٹ so and so speed, logic. It is not material evidence. آپ سمجھے نا؟ بٹ اکثر عام طور پہ مٹیریل ایویڈنس ہے، لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ If I could add something to this, this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist
on merit. But religion doesn't allow that. भाई साहब अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि साइंस डायनामिक है, मतलब डायनामिक बढ़ते जा रहा है, It's evolving every day. इट्स इवॉल्विंग एवरी डे, और मजहब स्टैटिक है, मतलब एकदम रुका हुआ है. मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूँ, मजहब को नहीं कर सकता हूँ. साइंस बढ़ते जा रहा है, तरक्की करता है, मजहब तरक्की नहीं कर रहा है. आप बिल्कुल सही फरमाते हैं. इस्लाम के अलावा दिगर मजाहिब के बारे में जो कह रहे बिल्कुल सही है. यू कैन नॉट चैलेंज अदर, लेकिन इस्लाम को आप चैलेंज कर सकते हैं. इसीलिए आप खड़े इधर, आपका यह वजूद, आपका मुझसे सवाल करना सबूत है कि हम चाहते हैं कि आप इस्लाम को चैलेंज करो. इसीलिए कुरान मजीद में 332 बार कहा गया है कालू, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा. अल्लाह ने फरमाया कुल, उनसे कहो, मतलब सवाल जवाब का सेशन. कई सवाल लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सूरज के बारे में जवाब है ये. लोग ने पूछा खमर के बारे में, सूरह बकरा सूरह 219. जब उन्होंने पूछा खमर के बारे में, यानी अल्कोहल, शराब, कहो उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी. बुराई अच्छाई से ज्यादा है. जवाब आ गया. उस वक्त अल्लाह के रसूल जब मौजूद थे, उस वक्त लोगों ने चैलेंज किया, आज भी करते रहेंगे. जहां आपका सवाल रहा कि साइंस इज एडवांसिंग, रिलीजन स्टैटिक, कुछ बातों में मैं मानता हूं. जब आप चोटी पे पहुंच गए है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज विच माउंट एवरेस्ट. अब माउंट एवरेस्ट पहुंच के उसके ऊंचा क्या जाएंगे? स्पेस में जा सकते हैं, लेकिन धरती पे आप बोलेंगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गए तो उसके आगे तरक्की करने की जरूरत ही नहीं. तो कुछ चीजें, मिसाल के तौर पे खुदा एक है, वो हक ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं. बट कुछ आयतें कुरान की ऐसी है कि आपको कुरान मजीद में जो अरबी अल्फाज है, कुछ अल्फाज के कई मानी है. एक आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आपके पहले क्वेश्चन पे आऊंगा जो बहुत अहम है कि आप नास्तिक है. मिसाल के तौर पे पहली आयत जो नाजिल हुई थी कुरान मजीद में, तो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक. पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया खून के लोथड़े से. आज साइंस एडवांस हुई. पहले लोग कहते थे कि इंसान खून से बना, ये पहले के लोग कहते थे. फिर साइंस एडवांस हुई, बोले खून से बना ही नहीं इंसान. फिर हम देखते अलग के 3-4 मानी है. एक मानी है अलग के खून का लोथड़ा, दूसरे मानी अलग के है क्लिंगिंग, चिपकना, क्लिंगिंग. तीसरी मानी है लीच लाइक सब्सटेंस, जॉक, लीच लाइक सब्सटेंस. 3 मानी है. अभी साइंस जब एडवांस हुई तो कुरान में लिखा है फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून. सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43. इसमें लिखा है अगर आपको नहीं पता उनके पास जाओ जो इस फील्ड के माहिर है, भले गैर मुस्लिम है. तो कुछ अरबों ने तकरीबन 30 साल पहले इसका ट्रांसलेशन लेके गए प्रोफेसर कीथ मूर के पास, जो एम्ब्रियोलॉजी के मैदान में उस वक्त नंबर 1 था दुनिया में. ही वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. उनके पास जब तर्जुमा लिखे गए काफी आयतों की, बोले अक्सर चीजें जो कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखी 100% सही है, और कई चीजें अगर आप मुझे 30 साल पहले पूछते तो मुझे खुद पता नहीं था. लेकिन एक चीज इसमें से अब भी मैं कहता हूं सही है, ये भी नहीं कहता हूं गलत है, क्योंकि खुद भी नहीं जानता हूं. एक चीज थी आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, कि पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया एक अलका से लीच लाइक सब्सटेंस. मुझे पता नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत में इन द एम्ब्रियोलॉजी के स्टेज, एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का मैदान है, मेडिसिन का सब्जेक्ट है. मतलब जब बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ की कोख में, पेट में जो मरहले रहते हैं, द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा मुझे नहीं पता कि बच्चा जब शुरुआत में जब माँ के पेट में रहता है, एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस,
وہ लीच जैसा लगता है। तो क्या किया उसने, माइक्रोस्कोप में, पावरफुल माइक्रोस्कोप में जाके देखा, इनिशियली बहुत छोटा रहता है, यू कांट सी विद द नेकेड आई, आप आपके आंख से नहीं देख सकते। और उसने कंपेयर किया जोक के फोटोग्राफ से, लीच के फोटोग्राफ से कंपेयर किया, और वो चौंक गया कि बिल्कुल यकसा है। उस वक्त हमें पता नहीं था, पता लगता है कि कुरान की आयत इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी, उस वक्त हम तर्जुमा करते थे खून का लोतरा, खून का लोतरा। पहले लोग यकीन करते फिर बोलते तो गलत है, खून का लोतरा तो है ही नहीं, कुरान गलत है। अब पता चला वो खून का लोतरा उसकी मानी नहीं थी, मानी थी लीच लाइक सब्सटेंस। जब और तहकीक के पता चला कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, यूट्राइन वॉल को क्लिंग करता है, इट क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल, क्लिंगिंग वर्क भी हो गया। थर्ड में पता चला कि माँ के पेट में जो बच्चा रहता है वो इट एक्ट लाइक अ लीच, ब्लड सकर, वो माँ के जरिए खून हासिल करता है, लाइक अ ब्लड सकर। 3 मानी सही हो गए। आज ये भी पता चला कि पहले हफ्तों में, पहले चंद हफ्तों में ब्लड खून सर्कुलेट नहीं होता है और दिखने में वो खून का लोतरा लगता है। जो हम समझते थे 20 साल पहले खून का लोतरा गलत तर्जुमा है, आज पता लगता है कि चारों तर्जुमे सही है। खून का लोतरा भी सही है, वो चिपकता है क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल, वो भी सही है, वो जो लीच जैसा दिखता है वो भी सही है, लीच जैसा बिहेव करता है वो भी सही है, चारों सही है। हमें यकीन है कि अल्लाह खुदा हमारा ईश्वर, आप मानेंगे नहीं ईश्वर में अभी, वो इसलिए पहले आवाज का जवाब पहले देखो अच्छा होता था, वो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो ये कहना कि तरक्की नहीं कर रहा है, कुछ बातों में जहां हम पहुंच चुके हैं चोटी पे, ये कहना इस तरीके से साइंस में भी, साइंस से हार्ट पंप्स ब्लड, कभी भी चेंज नहीं होगा। कितनी भी साइंस तरक्की करे, हमको हार्ट के बारे में और चीज पता लग सकती है, उसके 4 चेम्बर्स है, हर चेम्बर के वॉल्व है, वेंट्रिकल और, लेकिन ये चीज कि हार्ट पंप्स ब्लड, दिल खून को पंप करता है, कभी भी नहीं बदलेगा। सही क्या नहीं? मैं डॉक्टर हूं, तब ये हक है, अल्लाह है कि कभी भी नहीं बदलेगा कुछ चीज। तो ये कहना कि साइंस हमेशा तरक्की कर रहा है गलत है। जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उस चीज में तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उसमें तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे पहुंच गया जिस बात पे कभी भी नहीं बदलेगा। आज साइंस कहती है बिग बैंग के बारे में कि हमारी यूनिवर्स एक थी, फिर एक धमाका हुआ, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि हमें और नॉलेज मिलेंगे, धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जितने बाकी थियरीज थे अबाउट द यूनिवर्स क्रिएशन, स्टेडी स्टेट इज प्रूव्ड रॉन्ग। जब स्टीवन हॉकिंस ने प्रूफ किया, इसमें कोई राय नहीं। ये हो सकता है कि और हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इस तरीके से बैंग हुआ। तो इस तरीके से कुछ चीज साइंस हक है, कभी नहीं बदलेंगी, कुछ चीज बदल सकती है। तो मैं जब कुरान और साइंस के बारे में बात करता हूँ, उस चीज के बारे में बात करता हूँ विच इज द साइंटिफिक फैक्ट, कभी भी नहीं बदलेंगे। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, अभी पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको, सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूँ, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूँ मैं और ये मुबारकबाद दे रहा हूँ। सोच रहेंगे ना, सोच रहेंगे नहीं? क्यों मुबारक मैं आपको बोलता हूँ। अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा?
وہ ریلیجیس تھے. کوئی بھی مانتے تھے نا پردادا, آپ کے پردادا مانتے تھے, لیکن آپ اب یہ کرتے, آپ لیکن جانتے تو ہیں آپ کے دوست جب بات کرتے مذہب کے بارے میں, ایشور کے بارے میں, ان کا علم تو آپ کو ہوگا کہ نہیں, کہ میرے ہندو دوست کس بھگوان میں مانتے, علم تو ہے. آپ سوچتے ایسا بھگوان جو خود کچھ کام نہیں کر سکتے, دوسرے بھگوان کی مدد لیتا ہے, آپ سوچتے ہیں نا. اور یہ کیسا بھگوان ہے, ایک بھگوان دوسرے بھگوان کی مدد لے رہا ہے تیسرے بھگوان کو ہرانے کے لیے. تو آپ کا دماغ سوچ رہا ہے کیسا بھگوان ہے, یہ بھگوان میں ماننے کا فائدہ کیا ہے. تو میں آپ کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ آپ نے ہمارے اسلام کا, ہمارے ایمان کا, ہمارے شہادہ کا پہلا حصہ کہا, لا الہ دیر از نو گاڈ, کوئی بھگوان نہیں. آپ سمجھے نا, آپ نے ہمارے شہادہ, ہمارے ایمان, ہمارے اسلام کی بنیاد کا پہلا حصہ کہا, جو اہم جملے کا پہلا حصہ کہا, دیر از نو گاڈ, لا الہ, آپ کوئی بھی خدا میں نہیں مانتے. اسی لیے میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. وہ باقی جو غیر مسلمان ہیں, جو ہندو ہے, کرسچن ہے, مجھے پہلا ان سے بحث کرنے پڑے گا کہ آپ جس خدا میں مانتے ہیں وہ غلط خدا ہے, پھر ثابت کرنے پڑے گا الا اللہ, بٹ اللہ, جو میں انشاءاللہ کروں گا. ڈبل کام, آپ کے لیے آدھا کام میرا ہو چکا ہے, آپ سمجھے نا. اسی لیے آپ کے ساتھ میرا آدھا کام ہو چکا ہے. وہ کرسچن کو پہلے ثابت کرنے پڑے گا, ارے بھائی صاحب عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, میرا وقت جائے گا. ہندو کو بولنے پڑے گا, بھائی آپ جس بھگوان میں مانتے, ایشور میں مانتے, مورتی میں مانتے, غلط ہے. آپ تو پہلا پارٹ کہہ چکے ہیں ہمارا, مانتے ہیں. دوسرا پارٹ بٹ اللہ, انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ سائنس میں مانتے ہیں, میں بھی سائنس میں مانتا ہوں. آپ سائنس پہ یقین کرتے ہیں, الحمدللہ. میں بھی لمیٹڈ جہاں تک کہ صحیح مانتا ہوں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک چیز اگر آپ کے سامنے لے کے آؤں گا میں, جو کوئی بھی انسان نے کبھی بھی نہیں دیکھا, پہلی بار کوئی انسان دیکھ رہا ہے, اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا میکینزم, سب سے پہلا شخص کون بولیں گے؟ یہ چیز may be computer, may be something out of the world, something absolutely different. پہلے بار زندگی میں کوئی انسان دیکھ رہا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا اس کا میکینزم سب سے پہلے کون سا شخص کہیں گا؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ وہ تو ڈسکوری یا ری ڈسکوری رہے گا, تو اس کو پہلا اسٹڈی کرنا پڑے گا نا, ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوگا, اس کے بعد ہی پتا چلے گا. سب سے پہلے بار اسٹڈی تو بعد میں ہوئی. میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا شخص کون رہے گا اس کے بارے میں جو کہہ سکیں گا, میکینزم کے بارے میں, جو ڈسکورر ہے, وہ جو ڈسکور کرے گا وہ چیز کو. مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی گاڑی بناتا ہے, گاڑی تو ڈسکور کس نے نہیں کیا, وہ تو بنا رہا ہے. گاڑی تو انوینٹ کیا تھا, انوینٹ نے بنایا ہے. وہ انوینٹر کیا ہے, ایک نئی گاڑی لے کے آؤں گا, بولوں گا لیٹسٹ ماڈل ہے, کون جانتا ہے, آپ کیا بولیں گے گاڑی کو؟ گاڑی کو اگر یہ گاڑی ابھی ہے, میں اس کو پوچھوں گا ماروتی کار 800 کون جانتا ہے, تو آپ کیا اس پہ تحقیق کریں گے؟ نہیں. آپ کیا بولیں, کون جانتا ہے ماروتی 800 کے بارے میں؟ اب تحقیق کریں گے جواب دینے کے لیے. تحقیق کرنے پہ تو ایک ہفتہ, ایک سال نکل جائے گا. جواب کیا ہے؟ میں اندر کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا ہوں, یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا شخص کون ہوگا جو اس کے بارے میں جانتا ہے. تو کیا جواب دیں گے آپ کا؟ آپ سائنٹسٹ ہیں ماشاءاللہ. جس نے بنایا رہے گا اس کو بتا. جس نے بنایا ہے, انگریزی میں کہیں گے کریٹر, میکر, مینوفیکچرر, انوینٹر, جو بھی بولو, لفظ کا ادھر ادھر ہے. بڑا مانتے ہیں کہ سب سے پہلی بار وہ کیا چیز ہے بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے, اور آپ سے پوچھنے جائیں گا کہ سب سے پہلا شخص کون ہے جو اس چیز کے بارے میں جانتا ہے, تو جواب ہے اس کا کریٹر, مینوفیکچرر, انوینٹر, میکر, پروڈیوسر. تقریباً معنی ایک ہے. یہ جواب آپ کے ذہن میں رکھیے.
अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट नहीं कहने? हाँ वो बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियरी, आज बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस, एज ऑफ टुडे आप वी बिलीव इन बिग बैंग। आज के हिसाब से कल क्या होगा छोड़ो ना, कल क्या होगा छोड़ो, आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में है? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी मतलब first there was a primary nebula, there was a big bang, a second separation gave rise to galaxies, stars, suns, etc. ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन नो आइडिया। तकरीबन तकरीबन एग्जैक्ट नहीं पूछो, तकरीबन। मुझे ह्यूमैनिटी को आपको नहीं, आपको पता चला ना जब आपने पढ़े, और उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 ईयर्स। बिल्कुल सही, 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा, सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफतकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए। Do not the unbelievers see the heaven and the earth were joined together and we close them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 years, that difference opinion. ये Big Bang के बाद कौन सा गैस है, न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, वो सब डिस्कशन. But the Big Bang is an irrefutable proof according to scientists. I would like to interfere here, with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए, साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor, जवाब दिया ना अभी तक? okay, जवाब complete नहीं. I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the main will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Right? We'll have private discussion, we'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come, till morning is no problem. Not that I'm running away, then everyone will think that why are you giving this person, is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating or you can keep on asking counter question, it will keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get the main subject first. Because when you keep on doing, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, the science without religion is lame and religion without science is blind. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का पर्सनल व्यू था. हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है. ये साइंस की बुनियाद है, उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है. आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहे कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी. हर
हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है, जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, आपका व्यू नहीं है। हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है, नहीं सहमत है, दिस इज साइंस। इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है। आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते इसलिए सहारा ले रहे हो। आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा। कुरान की आयतें, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मदद की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया हूँ। वो क्रिश्चियन जो पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया हूँ। तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है। मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूँ। क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। मैं वेद कोट कर रहा हूँ, नहीं कोट कर रहा हूँ। मैं गीता कोट कर रहा हूँ, नहीं कोट कर रहा हूँ। बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूँ, गीता कोट किया हूँ, उधर साइंस नहीं कोट किया हूँ। तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है। चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस हो। लिटरेचर पोएट्री पे भी कर सकता हूँ, लेकिन ना पोएट है इन्हें, पैसा तो मैं भी नहीं हूँ। आपने कहा साइंस का सहारा किधर ले रहे? मैं सहारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों? बाकी हिंदी समझते, कोई जर्मन में बात करो, समझेंगे क्या? ये सब मैं भी जर्मन नहीं जानता, क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस। आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था। तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते, इट इज जस्ट डाइवर्जन। आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे हैं, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो भानु भी, आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे, फिर बोलते साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं। मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में आपके हिसाब से? ये कुरान 1400 साल पुराना, ठीक है? ये कुरान में किसने लिखा? I have no idea. I haven't read Quran. नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूँ ना, आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। Prophet Muhammad, maybe Prophet Muhammad, maybe हो सकता है, I don't know. maybe, ठीक है, सही है गलत, maybe। ये दुनिया जो हमारी है, दुनिया का शेप क्या है? What is the shape of this earth? Circular. Circle. It's ovoid. जियोस्फेरिकल। मैं जरा मदद करूं आपकी, क्योंकि मैं जरा साइंस के डिग्री में जरा हाई लेवल में डॉक्टर हूँ। आपकी डिग्री क्या पता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है। सर्कल मतलब फ्लैट है, इट शुड बी स्फेरिकल, यू शुड से बेटर है। स्फेरिकल इज जियोस्फेरिकल, एग्जैक्ट, करेक्ट ना? सर्कल करेक्ट है, जियोस्फेरिकल करेक्ट है? You are right. जियोस्फेरिकल, ओवॉइड भी करेक्ट है, जियोस्फेरिकल। ये कभी पता चला आपको? कितने साल पहले? नहीं पता, मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट भी हूँ। ये सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक। सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने इस अर्थ को, इस जमीन को दहाहा बनाया। दहाहा अरबी लफ्ज जो आता है धुइया से, जिसका मतलब एग शेप। और हम जानते हैं अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल नहीं, इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल शेप। और ये धुइया है, आम अंडा नहीं है, इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा है। और अब शतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज जियोस्फेरिकल शेप। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? तो उस वक्त कौन जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले। तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है?